وہ جو ریسرچ کا کام ہے شروع ہے وہ سلیم صاحب بتائیں. کچھ کو ابھی تک فہرست نہیں بنی کوئی؟ کتنے دیے گئے کتنے واپس آئے؟ تو میں نے کہا تھا نا باقاعدہ انتظام کے مطابق کرو. کیا ہمارے پاس تو ہم دے ہیں باقی آگے ہی تیار ہو کر. نہیں وہ اور باقی کی بحث چھوڑ دو نا. اب مجھے یہ بتایا کرو کہ کتنی گئی تھیں اور کتنی واپس آ گئی ہیں. کتنی دوائیں ہیں؟ 36 گئی ہیں جی. تو 33 جی 36. اچھا جی تو 14 کے قریب ابھی ہیں ہمارے پاس جو دینی ہے ابھی تقسیم کرنی ہے جی. اور باقی اس کے علاوہ باقی اس کے علاوہ ٹوٹل ہم 62 پڑھ چکے ہیں. ہاں 62 پڑھ چکے ہیں جو جی. ان کے پاس ان کے ابھی تک چھپے ہوئے آپ کے پاس نہیں ہو. ان میں سے 36 یہ دے چکے ہیں, وہ ہمیں مل چکے ہیں ان کا کام. ٹھیک ہے. اور 14 یہ ہمارے پاس ہے ان کا یہ دینا ہے. یہ تو 50 بنی. 50 اور 12 کے ابھی ہمارے پاس نوٹس نہیں ہیں. کیوں نہیں؟ کہاں ہیں وہ نوٹس؟ کچھ اردو کے ہیں اس میں سے, وہ ابھی انگلش میں ہونے نہیں ہو چکے ہیں. ایک یہ بھی ہیں یہ ہم سیلینیم پڑھ چکے ہیں نا, ساسپریلا بھی جی اور سیواڈیلا بھی اور ریومیکس بھی. ہاں تو یہ جو یہاں سے لے رہے ہیں. اور بتاؤ مجھے کون سے رہ گئے میں دیکھوں. عرفہ آپ کے بیٹے کا کیا حال ہے اب؟ وہ 3 دن تو ٹھیک رہا, آج پھر اس کی طبیعت خراب تھی. کیا دیا آپ نے اب اس کو؟ اب میں نے وہی ہائیڈروسائنک ایسڈ اور کب دی تھی؟ آج صبح جب اس کی طبیعت بیچ میں چھوڑ دی تھی آپ نے؟ دیتی رہی تھی لیکن ٹھیک بھی لگ رہا تھا. آج پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر پوچھنا تھا نا مجھ سے, اور دوائی تجویز کرتے اس کو. اپنے ہائیڈروفوبینم کا تھا نا, ہاں تو وہ ایک ہی خوراک میں نے دی, وہ زیادہ نہیں دی میں نے. کیوں ڈر گئی؟ جی ڈر لکھا ہوا نا. میرے کو دل نہیں ہے تو ہوئی. بس پھر وہی نقصان اٹھایا آپ نے. دینی چاہیے تھی, اب جاتے ہی دے دیں اس کو. اچھا ٹیوبرکلوز میں نے ایک دی, آج پھر اس کو دی 3-4 دنوں. 1000 وہ ٹھیک ہے, لیکن ہائیڈروفوبینم اور وہ ہائیڈروسائنک ایسڈ یہ 2 میں نے بتائی تھی آپ کو. یہ دلوائیں چھوڑنی نہیں چاہیے تھی, غلطی کی ہے. لگاتار دیتی ہے جب تک ضرورت ہے لگاتار. وہ تو ایسا اتنا ٹھیک ہو گیا تھا کہ وہ ایک رات آ نہیں رہا تھا, اس کے بعد ہاں ٹھیک ہونے کے بعد تو یہ تو نہیں کہ دوبارہ بیمار کیا جائے زبردستی. وہ آپ نے چھوڑ دی جو دوا, وہ غلطی کی ہے. جب علامتیں واپس آئیں اسی وقت دینی چاہیے. ہائیڈروفوبینم بھی ضرور دینی چاہیے تھی. یہ ملا کے میں نے دیکھا بڑا اچھا کمبینیشن ہے یہ, سمجھ گئے. اچھا آج مختلف دوائیں ہیں جو روزمرہ کام کی. ایک ہے سینیشو اورنج, سینیشو SENECIO, سینیشو. یہ عام طور پر خاص نوجوان بچیوں کی اندرونی تکلیفوں کے لیے مفید ہے. جس طرح کیلکیریا فاس میں نے کہا تھا نا, کیلکیریا فاس تو تکلیفیں اگر جوانی کی عمر میں جب مینسز آنے والے ہوں, سردی سے بند ہو جائیں, سردی لگ جائے, تو پھر ساری عمر وہ تکلیف رہتی ہے جب تک اس کا کیلکیریا فاس سے علاج نہ کیا جائے. اور سینیشو اورنز عموماً نوجوان چھوٹی بچیاں جو بلوغت کو پہنچ رہی ہیں ان کی منسٹرل کمزوریوں کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے. اور چونکہ اس سوسائٹی میں عام طور پہ یہ تکلیفیں ہوتی ہیں, بچیاں بعض دفعہ بتاتی نہیں غیر کو, تو ماؤں کو علم ہونا چاہیے کہ کیا علاج ہوگا.
इसमें आमतौर पर बेहतियाती से उन दिनों में नहा लिया जाए, नहाने के बाद जल्दी बाहर आ जाएं, सर्दी लग जाए या पाँव भीगे रहें देर तक, ये नमदार मौसम में नंगे पाँव घर में फिरती हैं बच्चियां बाज़ दफ़ा, उनसे मेंसेस पर जितने बदअसर पड़ते हैं उनका इलाज सेनिशो ऑरेंज में है। लेकिन आगाज़ में कैलकेरिया फॉस पहले देखनी चाहिए। दूसरा इसका ख़ास निशान है खून बहना जगह जगह से, ओरिफिस से, नाक से, हर जो यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन और जिल्द मिलती है उसके जोड़ से या उन सुराखों में से खून बहना, ये सेनिशो का निशान है। और ये आमतौर पर सांप के काटने से अलामतें पैदा होती हैं, मगर इस दवाई में भी ये नुमायाँ मिलती हैं। गालिबन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से इसका ताल्लुक इसीलिए है, वो भी ब्लीडिंग से ताल्लुक रखने वाली चीज़ है। गुर्दे में जो दर्द का दौरा पड़ता है उसमें बहुत गैर मामूली दर्द ज़्यादा हो तो उसमें 2 फौरी दवाइयाँ मैंने आपको बताई थी, याद है क्या क्या थी? एक्ोनाइट और बेलाडोना। एक्ोनाइट और बेलाडोना 1000 ताकत में 15 मिनट के वक्फे से, अगर उसको गर्मी से तकलीफ बढ़ती हो या खून का बहुत दबाव है उस तरफ तो बहुत जल्दी आराम आता है इससे, लेकिन उसके बाद फिर मुस्तकिल इलाज ज़रूरी है। और दूसरी दवा ये भी है, लेकिन मैंने जो आपको बताई थी वो थी कि अगर गर्मी से आराम आता हो तो फिर मैकफॉस बहुत इफेक्टिव है, और कालुसिंथ भी ऊंची ताकत में दी जा सकती है। मैकफॉस के साथ एक्ोनाइट भी मिलाना होता है कि नहीं? नहीं, सिर्फ मैग्नाइट, मैकफॉस सिर्फ। एक्ोनाइट तो ब्लड रश के साथ बेलाडोना की तरह का है, मैकफॉस और तरह की चीज़ है। और इंतहाई शदीद दर्द अगर इन दो नीचों से ना हटे तो उसमें सेनिशो ऑरेंज को याद रखें। मैं तो अमूमन 6x में गर्म पानी में घोल के तो बार बार सिप करने के लिए देता हूँ, वही काफ़ी हो जाती है। हो सकता है ऊंची ताकत में भी मुफीद हो, लेकिन मुझे इल्म नहीं है। 6x में टिक्कियाँ आमतौर पे होती हैं पास, वो काफ़ी गर्म पानी, उबलता हुआ पानी ना हो मगर गर्म पानी हो, उसमें चंद टिक्कियाँ घोल दें तो मरीज को कहें सिप करे वो थोड़ा थोड़ा। और पेट का दर्द का दौरा हो या किसी और जगह अगर गर्मी से फ़ायदा होता हो उसको, तो उसमें ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है? आमतौर पर ये मथली का और उल्टियों का दौरा होता है इसके पित्ते की दर्द के साथ और अपेंडिसाइटिस के साथ, और गुर्दे की तकलीफ अक्सर इसके बगैर होती है। लेकिन सेनिशो ऑर्गन्स का निशान ये है, अगर ख़ास पहचान इसको इसकी करनी हो, इसमें साथ मतली भी हो जाती है। तो अगर गुर्दे की दर्द हो और वॉमिटिंग का रुझान हो तो फिर सेनिशो ऑरेंज को पहले ट्राई करना चाहिए। हेमरेजिस का बता चुका हूँ, उसमें ये मुकाबला करती है हेमामेलिस और फास्फोरस और ब्राउनिया बाज़ सूरतों में। तो हेमरेजिस की दवाओं में एक ये भी और फिर मिलीफोलियम भी बहुत अच्छी और फौरी असर दिखाने वाली दवाएं हैं। इससे मिलती जुलती दवा अब बर्बरिस है, गुर्दे की बात हो रही थी। बर्बरिस को अमूमन लोग मदर टिंचर में इस्तेमाल करते हैं,
اور مدر ٹنکچر میں اچھا فائدہ پہنچاتی ہے، کیونکہ یہ صرف درد کو دور نہیں کرتی بلکہ وہ پتھری کو گھلانے میں بہت مفید ہے. اور بعض اس کے ٹیکا بھی کر دیا کرتے تھے. ہمارے شیخ محمد حنیف صاحب مرحوم اس کا ٹیکا بھی کیا کرتے تھے اور زیادہ میٹیریل ڈوزز دیتے تھے. میں نے ان سے اس بارے میں ایک دفعہ پہلے اختلاف کیا تھا. اب آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ جو دوائیں ہیں اگر یہ ہومیوپیتھک ہیں تو ان کی جو مدر ٹنکچر بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، بعض صورتوں میں نقصان ہو سکتا ہے. کہ بجائے اس کے کہ ہومیوپیتھک رد عمل پیدا کریں، اگر زیادہ دوا چلی جائے تو وہی علامتیں پیدا کر بھی سکتی ہے. اور دوسرے ہومیوپیتھک کے ٹیکے بنانا ہے ہی فضول بات، کیونکہ اس کا رد عمل معدے میں جا کر ہضم ہونے سے اور اس کے بعد خون میں ملنے سے کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا. ہومیوپیتھک کا رد عمل کیپلریز میں جو فوری طور پر دوا جذب ہوتی ہے، اور دوا ہوتی کوئی نہیں، اس کی یاد ہے، اس کا رد عمل فوری ہوتا ہے. بعض دفعہ اگر اسکن کے اوپر بھی رب کر دیا جائے تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے فوراً. اس لیے گردے کے اوپر اگر معروف جگہ کے اوپر آپ ہومیوپیتھی کی دوا کر رب کریں تو اس کا رد عمل نظر آئے گا کچھ عرصے کے اندر. اور ڈاکٹر راجہ صاحب نے اس کو اسی بنا پر اس کو اسمیل سسٹم ایجاد کیا ہے، جو بجائے اس کے کہ دوائی کھا لی جائے سونگھ لی جائے تو کھا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، منہ میں جاتے ہی وہی اثر کرے گی، خاص آپس میں فرق نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں کہ اسمیل سے زیادہ اثر ہو اور کھانے سے کم ہو. یا مگر ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا غالباً کہ پیکیج آسان ہے اور کسی گولی کی ضرورت نہیں، کسی پانی میں گھولنے کی ضرورت نہیں، یوں سونگا اور ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اب مسئلے اٹھ کھڑے ہوں گے کہ روزے میں سونگا جا سکتا کہ نہیں. بربرس کو میں بتا رہا تھا کہ عموماً مدر ٹنکچر میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس طاقت میں بہت مفید ہے. اور اگر یہ واقعتاً ہومیوپیتھک ہو اس کیس کو اور رد عمل ہی سے پتھری پہ اچھا اثر پڑتا ہے تو پھر 30 طاقت میں زیادہ مؤثر اور زیادہ گہرا اثر کرتی ہے. اور اس طاقت میں جگر کے لیے بھی بہت مفید ہے اور پتے کی پتھری میں بھی بہت مفید ہے اور دل پہ بھی بہت اچھا اثر ہے. تو 3 کمبینیشنز ہیں اس کے، گردہ، پتا، جگر، اور ان کے اثر کے ساتھ پھر دل پر اثر پڑتا ہے. اگر جگر کی خرابی سے دل پر اثر ہو تو پھر یہ دوا مفید ہے، براہ راست دل کا ٹونک نہیں ہے. اور جگر کی خرابی سے اگر دل پہ اثر پڑے تو بالعموم بریڈی کارڈیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ٹیکی کارڈیا یعنی تیز نہ دل دھڑکے، وہ آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. بعض مریض میں نے دیکھے ہیں. ایک دفعہ ربا میں ایک ذمہ دار آیا ہوا تھا تو اس کو چونکہ فرق نہیں پڑ رہا تھا، مجھے ڈاکٹر صاحب نے، یہ بھائی نہیں مرحوم نے بلایا تھا، تو اس کی نروز 30 پہ ٹھہری ہوئی تھی، کسی چیز سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور جگر خراب تھا. اب مجھے یاد نہیں کہ اس کو فائدہ ہوا تھا کہ نہیں، لیکن میں نے تجویز کر دی تھی بہرحال دوائیں. اور اس کے بعد چونکہ میں ہسپتال جایا نہیں کرتا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جگر کی خرابی سے جس کا تعلق بربرس سے ہو، پلس سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور دوسری دوا بھی ایسی ہے جس میں سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور وہ مگر اس کو ڈاکٹر اس لیے سلو ڈاؤن ہوتی ہے کہ ڈاکٹر اوور ڈوزنگ کرتے ہیں. وہ ڈاکٹروں کی اکثر استعمال ہونے والی دوا ہے دل میں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈیجاکسن اگر نبض بہت تیز ہو تو اس کو ہلکا کرتی ہے اور سلو ڈاؤن کر دیتی ہے دل کو. لیکن یہ جو اس کا اثر ہے یہ ہومیوپیتھک نہیں ہے، یہ ایلوپیتھک اثر ہے، یہ براہ راست دباتی ہے.
اور چونکہ یہ براہ راست اس کو دباتی ہے، اس کے پھر دو طرح کے اثر ظاہر ہوتے ہیں. اگر آپ ہومیوپیتھک میں دیں گے اس کو تو وہ مریض جس کا جگر خراب ہو اور نبض آہستہ ہو گئی ہو، اس میں ڈیجیٹیلس مفید ہے. آپ کے ہاں تیز نبض کے لیے دی جاتی ہے، دل کی تیز دھڑکن کے لیے. اس بابے کو میں نے ڈیجیٹیلس دی تھی، مجھے یاد ہے، اسی لیے مجھے وہ اب دوبارہ یاد آئی ہے. اس کا جگر بہت بڑا ہو گیا تھا اور نبض کم ہوتے ہوتے 60 سے پہلے 60-62 ہوا کرتی تھی، 30 پہ آ گئی تھی. اور ڈیجیٹیلس کا ایک دوسرا اثر بھی ہوتا ہے، اور ہومیوپیتھک میں اگر دی جائے تو وہ بہت تیز دل کی دھڑکن میں بھی مفید ہے. اس صورت میں جبکہ دباتے دباتے آخر وہ دل جواب دے جائے. یعنی عام طور پر ڈیجاکسن زیادہ دی جائے تو کچھ عرصے کے بعد پروگریسو ہارٹ فیلئر کے سمٹمز جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور دل کے مسل کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پھڑکنے سے لگ جاتا ہے، پوری باقاعدہ نبضیں نہیں رہتی. اس میں ہومیوپیتھک طاقت میں ڈیجیٹیلس کسی حد تک مفید ہو سکتی ہے اس لیے کہ اگر ڈیجیٹیلس ہی کا زہر کی وجہ سے یہ علامتیں ہوں تو پھر میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. لیکن اگر کسی اور وجہ سے ڈیجیٹیلس والی علامتیں ہوں تو پھر ڈیجیٹیلس اس میں ضرور مفید ہے. سمجھیں؟ یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ وہ مریض تو نہیں جس کو لمبا عرصہ تک ایلوپیتھک میں ڈیجیٹیلس ملی ہے. ایسے کئی مریض میں نے دیکھے ہیں جو بالآخر دل کی وجہ سے وفات پا گئے، کہ جن کو لمبا عرصہ ڈیجیٹیلس پر رکھا گیا، پھر آخر ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ہم زیادہ نہیں دے سکتے، اور دل نے بالکل آخر پہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر بڑا تیز دھڑکتا ہے، بڑی سخت بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہایت بے چینی سے موت واقع ہو. اور مشکل پھر یہ پڑتی ہے کہ اس میں لنگز میں پانی بیٹھ جاتا ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے پانی، جگر پر بھی بد اثر ہوتا ہے، جگر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو ڈیجیٹیلس پر رکھے ہوئے مریضوں کا اکثر تکلیف دہ انجام ہوتا ہے. تو ایلوپیتھک ڈاکٹر سے معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی کوشش کریں کہ نہ ہی استعمال کریں اس کو. صرف وقتی طور پر فوراً فائدہ دکھائے گی لیکن سپریشن کرتی ہے، کیور نہیں کرتی. بربرس کی بھی یہی علامتیں ہیں جو میں نے بتایا تھا اس پہلو سے، کہ جگر پر اثر ہے اور نبض کو ہلکا کر دیتی ہے. اس لیے ہومیوپیتھک ڈوز میں جگر کو ٹھیک کرتی ہے اور ہلکی نبض کو مناسب کر دیتی ہے. گاؤٹس میں اس کا بہت اثر ہے، اور بربرس کو اگر مدر ٹنکچر کی بجائے 30 میں دیا جائے گاؤٹ کے لیے تو کچھ عرصے میں جسم ہلکا ہو جاتا ہے اور تیزابی مادے پیشاب سے نکلتے ہیں اور پیشاب زیادہ ہوتا ہے. مگر اس صورت میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اوور ڈوزنگ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ دل پر بھی اثر پڑتا ہے. خطرناک نہ بھی ہو تو اگر کسی کو ڈیجیٹیلس 30 میں کچھ عرصہ دیں تو دل کمزوری محسوس کرتا ہے اور وزن یہ گراتی ہے ساتھ. اس لیے عورتوں کو احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر وزن گرانے کے شوق میں کوئی زیادہ ہی نہ کھا جائیں بربرس. مگر میرا تجربہ ہے اگر بربرس دی جائے، میں احتیاطاً کم دیتا ہوں کیونکہ دل کی وجہ سے، اکثر تو میں چھوٹی طاقت میں اس لیے دیتا رہا ہوں، لیکن 30 میں بھی استعمال کی ہے. پیشاب آور ہے اور کافی تنگ کرتی ہے، پھر 2 گھنٹے بعد مریض کو بعد پیشاب پہ جانا پڑے گا اور بعض دفعہ اس سے بھی جلدی، لیکن جسم کا رکا ہوا پانی نکال دیتی ہے اور گردے صاف کرتی ہے. ہاتھ روک کر دینی چاہیے. اگر دل میں کمزوری کی شکایت مریض کرے تو کچھ دیر کے لیے روک دیں، لیکن جب کام کرتی ہے تو بدن کو بالکل ہلکا کر دیتی ہے، وہ پرانی بیٹھی ہوئی دردیں صاف ہونی شروع ہو جاتی ہیں.
इसकी दर्दें जो हैं उनके साथ एक ख़ास अलामत यह है कि ट्विंजेस होती हैं, यूँ करके जिस तरह चुटकी भरी हो, अंदर उसके छोटा सा स्पेज़म होता है और यूँ स्पेज़म इसका हिस्सा है असल में, यानी तशन्नुज और ये जो गुर्दे की तकलीफ़ है ये भी तशन्नुज की वजह से होती है। अंदर की नालियों में ख़ारिश या सोजिश की वजह से तशन्नुज हो जाता है। तो बर्बरिस में अमूमन मसल्स में ये फड़कना और एकदम यूं बंद होकर दर्द का एहसास, लेकिन लंबा अरसा नहीं रहती। दूसरी इसकी एक ख़ास अलामत ये है कि इसकी दर्दें रेडिएट करती हैं चारों तरफ। परीरा बराबा की जो गुर्दे की दर्द है वो अमूमन एक रुख पे चलती है, गुर्दे से नीचे रान की तरफ उतरेगी, और ये इलामत है कि परीरा का मरीज़ है। लेकिन बर्बरिस जिस तरह बल्ब रेडिएट करता है हर तरफ, इसकी दर्दें रेडिएट होती हैं। अगर गुर्दे में हो तो वहाँ से रेडिएट होंगी, अगर पित्ते में हो तो वहाँ से रेडिएट होंगी। और पित्ते में अगर ये इलामत पाई जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव दवा है, लेकिन मदर टिंचर में ओवरडू नहीं करना चाहिए, समझे? पेशाब की इसकी जो तकलीफ़ें अपनी हैं इस दवा की इलामतों में ज़ाहिर होती हैं। वो कभी ज़्यादा पेशाब आकर पतला हो जाता है, कभी कम होकर बदबूदार और उसमें फासिद मादे मिले हुए। तो दोनों तरह की इलामतें इसमें मिलती हैं। मालूम होता है कभी पेशाब ज़्यादा आता है तो गुर्दे साफ हो जाते हैं, इसलिए बदबू वगैरह ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर ये काम करना छोड़ देती है या गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, तो ये अलामत पैदा होती है। माफ़ी चाहता हूँ, ये आपने सिनिशो शुरू किया था, बर्बरिस अब कुछ अलामतें बता रहे हैं। हाँ। ये बर्बरिस के मुतालिक है कि सब कुछ बर्बरिस के मुतालिक। ठीक। सिनिशो ख़त्म करने के बाद उसको पैक करके ठीक है, ठीक यहाँ रख दिया यूँ, जी जी, और ठीक, उसके बाद बर्बरिस ठीक है, शुरू। और ये बताया था कि चूंकि सिनिशो में गुर्दे की बातें हुई हैं, ठीक है, इसलिए उसी ताल्लुक में अब आप गुर्दे की बातें कर रहा हूँ, ठीक है? बर्बरिस, गुर्दा असल में बर्बरिस का ख़ास निशान है। ठीक है, यहाँ तक कि अक्सर होम्योपैथ सिवाय गुर्दे के किसी चीज़ में नहीं देते इसको, याद ही सिर्फ गुर्दे पे आती है। हालांकि पित्ते की पथरी की भी चोटी की दवा है, ठीक है, जिगर की भी चोटी की दवा है, समझे हैं? ठीक है। तो बेरी बेरी भी इसी को करते क्या? हैं? बेरी बेरी भी इसी को करते हैं। किसको? बर्बरिस को? गुर्दे की बेरी बेरी नहीं, बेरी तो बीमारी है, विटामिन बी की कमी की वजह से जो हो जाती है जिल्द पर, क्योंकि वही चीज़ है ना डॉक्टर साहब। हाँ, आपने को अपना मालूमत को तैयार किया है काम, थोड़ा सा उसमें बेरी लफ्ज आया कहीं, लिखा हुआ था बेरी आपकी दवा में कहीं? नहीं, बड़ी देर से पता है। ये इस बात का जो गलत है, बड़ी देर से पता है। बर्बरिस में रूमेटिज्म से ज़्यादा गाउट की इलामतें हैं, इसलिए पंजों में भी और हाथों में, उंगलियों वगैरह में जो ठहरी हुई दर्दें होती हैं उनमें बर्बरिस ज़्यादा मुफीद है। और इसमें और कौन सी दवाई है जो बहुत अच्छी है? बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड को बर्बरिस से अदला बदला भी जा सकता है और कोई नुकसान नहीं है। कभी बर्बरिस दे दी, कभी बेंजोइक एसिड दे दी। मैंने कहा ना बर्बरिस कभी कभी रोक देनी चाहिए ताकि इसका दिल पे घबराहट, कमजोरी का असर ना हो। उस सूरत में बेंजोइक एसिड इसका बेहतरीन मुतबादिल है और जिस्म में से ये मादे कम करने के लिए मुफीद है। दिल पर इसका असर होम्योपैथ जो अच्छे डॉक्टर हैं वो ये बताते हैं
کہ जिगर के ऊपर ये असर करती है और जिगर के खराबी के नतीजे में दिल की बीमारी। जिस कमजोरी की मैं बात कर रहा हूं इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जिगर को ये ठीक करती है तो दिल को भी ठीक करती है। मैं जो बात कर रहा हूं वो असल में जहां भी डिपॉजिट्स किसी किस्म के तेजाबी मादे, जो मसलन यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह, ये जहां जोड़ों में बैठे हों, जो दवा उनको हिलाती है उनको पहले खून में शामिल करती है, फिर वो गुर्दे से निकालती है। तो जो हलचल में खून में जो तेजाबी मादे होते हैं तो वो फिर इरिटेट करते हैं। तो दिल पे जो कमजोरी का एहसास है ये उस वजह से है, इसका उस जिगर की बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ गए? वहां ये ठीक करेगी तो दिल में को टोन अप करेगी, बल्कि छोटी पल्स को बढ़ा के ठीक करेगी। लेकिन अगर यूरिक एसिड वगैरह जोड़ों में हो और दर्दें हों और मरीज एकदम हल्का महसूस करना शुरू करे तो वो वक्त है कि तवज्जो की जाए कि दिल के ऊपर कहीं बदअसर तो नहीं पड़ रहा। इसलिए उस वक्त पेशाब और जो दवा होता है पानी ज़्यादा पिलाना चाहिए। ऐसे मरीज को पानी ज़्यादा पिलाना चाहिए, वो फिर घोल कर उन मादों को जल्दी बाहर निकालता है। इसकी जो दर्दें हैं उनका हरकत से कोई ताल्लुक नहीं। बैठा हो मरीज, आराम कर रहा हो, चल रहा हो, वो अपने वक्त में आप ही आएंगी। ट्विंजेस जो उठती हैं वो खुद ब खुद उठती हैं। बाकी अक्सर तो इसकी जो रेडिएशन की है खासियत, उस पर ही डॉक्टर बहुत लिखते हैं। जो ट्विंज जिसको मैंने कहा ना, यूं करके अचानक यूं बंद होती है दर्द मुट्ठी की तरह एकदम, ये हर दर्द में इसके मौजूद होती है। यहाँ तक कि जोड़ों के दर्दों में भी ट्विंजेस छोटे छोटे होते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुमायां नज़र आती है पथरी, गुर्दे की पथरी में और पित्ते की पथरी में। वहाँ अगर ट्विंजेस हों और चारों तरफ फैलने वाली दर्दें हों तो ये तीर बहदफ काम करती है। चेहरे पर, सर के ऊपर एहसास होता है जैसे कोई चीज लिपटी हो, पट्टी बंधी हुई हो। ये और किस दवा में नुमाया है? हाँ? नहीं, ग्लोनाइन में। और ग्लोनाइन में ये जो पट्टी का एहसास है, नेट्रोमियोल में भी मुमकिन हो, लेकिन जो सबसे नुमाया है वो ग्लोनाइन में है। बर्दाश्त नहीं कर सकता आदमी टोपी भी, और गर्दन में कॉलर को बंद बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये लेकेसीज में भी है। समझे? तो इसमें सर के ऊपर कुछ भी ना हो, ये फर्क है। और तो टोपी बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, घुटन सी रहती है कुछ, लेकिन यहाँ कुछ भी ना हो तो महसूस होता है जैसे कुछ लिपटा हुआ है। ये बर्बरिस की कोई खास इलामत है, जैसे मेरे सामने कभी नहीं आई आज तक। सुराइना वगैरह की तरह इसको भी बहुत भूख लगती है बर्बरिस के मरीज को। लेकिन इसकी जो भूख है ये दौरेदार है। बाज मरीजों में दौरेदार भूख होती है, और दमे के मरीजों में जिनका मैदे से ताल्लुक हो उनमें भी ये इलामत पाई जाती है कि कभी भूख का दौरा पड़ा है और बहुत बदपरहेजी कर जाते हैं बच्चे, और फिर दमा और बिल्कुल भूख बंद।
फिर ठीक होंगे, फिर भूख। अगर ये ऑल्टरनेट इलामतें दमे में मिलें तो नक्सवामी का दवा है, और अगर उन तकलीफों में मिलें जो बर्बरिस की तकलीफें हैं तो बर्बरिस इलाज है। इस पहलू से इसका मिजाज बिल्कुल नक्सवामी का वाली भूख से मिलता है। इसकी दर्दों में स्टैबिंग भी पाई जाती है, जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो, और ये जिगर में खास तौर पर, और गॉल स्टोन की सूरत में भी ये स्टैबिंग पेन्स उठती हैं बाज़ दफा। गॉल स्टोन में अमूमन स्टैबिंग पेन्स पीछे की तरफ जाती हैं, और दवाओं में भी होती है, यहाँ से पीछे कमर में, लेकिन इसकी बर्बरिस की हर तरफ, कभी इस तरफ शूट कर जाएगी, कभी उस तरफ शूट कर जाएगी, फुलझड़ी की तरह, कोई उसका एक रुख नहीं है। आमतौर पर रफ्ता रफ्ता इसके मरीज का असर अगर जिगर और पित्ते पर हो तो उसका रंग जर्द होना शुरू हो जाता है और यरकान की इलामतें जाहिर होती हैं। और यरकान की इलामतें जब जाहिर हों तो स्टूल का रंग बदलकर मिट्टी जैसा हो जाता है, और वो वक्त है कि फौरी इसका बर्बरिस से इलाज होना चाहिए। ऐसी सूरत में मैं कार्डुस मैरियानस भी साथ मिला देता हूँ, और इनका कोई इख्तलाफ नहीं, एक दूसरे के मददगार होते हैं। मगर जिगर में इसको मदर टिंक्चर में ही देता हूँ मैं। 30 में बाकी चीज़ों में इस्तेमाल किया, गुर्दे में या गाउट वगैरह में, उसमें बहुत इफेक्टिव है, लेकिन जिगर में 30 का मुझे तजुर्बा नहीं है, मगर हो सकता है उसमें भी मुफीद हो। क्योंकि इसलिए 30 का नहीं किया कि मैं कार्डुस मैरियानस को साथ में लाना चाहता था, और कार्डुस मैरियानस मदर टिंचर में दी जाती है, वो जिगर की चोटी की दवाओं में से है, तो इन दोनों के मिजाज मिलते हैं इस पहलू से। अब एक चीज इसकी अजीब है, जिसका मुझे तजुर्बा तो नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने, बाज़ अहम काबिल एतमाद डॉक्टरों ने लिखा है कि फिस्टुला जो मकसद में हो जाता है, बर्बरिस बाज़ दफ़ा अगर बाकी इलामतें मिलती हों तो अकेली ही फिस्टुला ठीक करने के लिए काफ़ी है, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती। मैंने आपको बताया था कि हरकत से इसकी दर्दों का ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो इसकी रूमेटिक भी होती हैं बाज़, मगर अक्सर गाउट की जो दर्दें हैं उनका हरकत से ताल्लुक है, उनमें हरकत से ज़रूर तकलीफ बढ़ती है। जो जोड़ हिलते हैं तो अंदर बैठे हुए मादे भी तंग करते हैं। तो ऐसा मरीज़ जो उठता है तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे पाँव रखता है पहले, और उसको एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगता है। ये इलामत अगर जिस्म की अमूमी दर्दों में पाई जाए तो उसमें बर्बरिस 30 में मुफीद है। रीनल कॉलिक में गुर्दे के जो कॉलिक है और पथरी वगैरह, उसमें बहुत फ़ायदा है इसका, बहुत ही अच्छी दवा है, लेकिन कुछ लंबा अरसा खिलानी पड़ती है ताकि पथरी फूल के बाहर आ जाए। लेकिन अगर पथरी ऑक्सैलिक एसिड की होगी तो फिर बर्बरिस उसको कुछ नहीं कहेगी। ऑक्सैलिक एसिड की पथरी में बर्बरिस कुल्लियतन बेअसर है, ऑक्सलेट्स से बनती है, समझे हैं? और वो होती भी इतनी सख्त है कि ये जो आजकल जो नई चीजें निकली हैं ना, वो साउंड से, जिस तरह हैं
नहीं लेजर नहीं, जो आवाज हाई इंटेंसिटी की वेव, जिस तरह ये माइक्रोवेव के अवंस होते हैं, उस टाइप की माइक्रोवेव ट्रीटमेंट होती है जो सिर्फ गुर्दे की पथरी पर असरअंदाज होती है। और लेजर से इन मानों में मुशाबे है कि लेजर में ये बात पाई जाती है कि जहां गर्मी पैदा करता है वो लेजर, उसी जगह उन्होंने उसको कोई टिंट देकर उस जगह को लेजर कबूल करने के अहल बना दिया होता है। तो इर्द गिर्द कुछ भी नहीं होगा, वो स्पॉट जहां लेजर ने काम करना है उसी स्पॉट के ऊपर वो अपनी पूरी ताकत दिखाता है। बाज़ क्लॉट्स को भी ये जला देते हैं और बाज़ पुराने स्कार्स को अंदर जला देते हैं, मगर इर्द गिर्द के उसके कुछ नहीं होता। और उसके साथ आमतौर पर अब नए ऐसे निज़ाम बन गए हैं कि ट्यूबें डाल के उसको ठंडा करने के लिए इर्द गिर्द के जो टिश्यू हैं उनको हिफाजत के लिए उसको ठंडा करने के लिए भी इंतज़ाम किया होता है। मगर बहरहाल ये जो दवा है ऑक्सैलिक एसिड का, जो मैं बता रहा था कि उसकी पथरी वो इससे भी ठीक नहीं होती, बिल्कुल उसको जवाब दे देती है। जहां तक मैंने तजुर्बा किया है, अगर ये किसी चीज से ठीक होती है तो सिलिशिया और कैलकेरिया फ्लोर 6x में कुछ अर्सा खिलाया जाए तो रफ्ता रफ्ता ये इसको घोल देता है। हुजूर, आपने यही मेरी बाजी को दी थी दवाई ऑक्सैलिक एसिड हैं? जी, लेटर में लिखा है। फिर फायदा हुआ था? जी वही मैं बता रही थी ना। क्या बता रही? कोई नहीं बता रही थी, चुप करके बैठी है तुम। कि वो औरतों को आदत होती है, वही मैं बता रही थी। हुजूर, मैंने खत में कब बता रही थी? आपने लिखा ना। यानी खत तो मिलेगा, अब बताओ क्या बात है। जी, उनको थी ना पथरियां थी वो अच्छा। जिगर में और गुर्दे में और ठीक है। पित्ते में। ठीक है, तो पहले आपसे एक नुस्खा लेके दिया तो वो उनको नहीं पता था, सिर्फ गुर्दे के लिए। ठीक है, तो दर्दों को आराम नहीं आया। ठीक। तो दोबारा आपने जब दिया तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड और बर्ड्रेस और प्रीरा ग्राइवा ठीक है। और भी मैंने लिखे मुझे भी। हाँ हाँ, बहरहाल ये आपने दी ना तो उन्होंने 1 महीना ये खाए। ठीक है, तो वो जब दोबारा हॉस्पिटल गई तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन शायद करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट आई तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई पथरी नहीं है। वो डॉक्टर निशान ही नहीं। वो इसलिए वो उनको मैंने सिलिशिया नहीं दी थी, उनकी इलामतें ऑक्सैलिक एसिड मांग रही थी। तो चूंकि ऑक्सैलिक एसिड वो पथरियां पैदा करता है, जिस पथरी की मैं बात बता रहा हूँ कि जिद्दी, वैसी ही उस नौजत की पथरियां जो ऑक्सैलिक एसिड की सिम्टम्स में मिलती हैं, वो उनके गुर्दे में भी थी, उनके इसमें नहीं जिगर में, पित्ते में तो थी, जिगर के अंदर भी पथरियां थी। और डॉक्टर्स बहुत परेशान थे कि ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। तो मुझे उनके उस वक्त गुर्दे का नहीं लिखा था, उन्होंने सिर्फ यही लिखा हुआ था जो उनका खत आया था पहला। उनको मैंने ऑक्सैलिक एसिड और साथ कॉम्बिनेशन दिया था, तो ये बता रही है कि बिल्कुल सब ठीक हो गया अल्लाह के फजल से, कोई निशान ही नहीं रहा। अब मैं आपको एक दवा बताता हूँ एस के साथ, और दवाएं हैं सेनेगा है मेरे पास, सैंग्विनेरिया है और सीपिया है। पहले सेनेगा शुरू करते हैं। सेनेगा वो एलोपैथिक दवा है जो 100 साल से भी ज्यादा अरसे से, जब वो क्लासिकल ट्रीटमेंट हुआ करती थी नुस्खों वाली, उस वक्त सेनेगा हर छाती के नुस्खे में इस्तेमाल होता था। और एक मुस्तकिल जुज़ था उस मिक्सचर का जो छाती की बीमारियों में, खांसी में, यहाँ तक के सिल के मरीजों के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। छाती पर असर तो इसका है, लेकिन होम्योपैथिक में भी ये साबित हुआ कि इसकी वजह से भी छाती की बीमारियां पैदा होती हैं। और ये नई बात सामने आई कि ये खुद कुछ इसका बीमारी दूर करने वाला था, कुछ पैदा करने वाला भी था। इसका मतलब है प्राइमरी और सेकेंडरी 2 असरात होते हैं। प्राइमरी ये कि अगर थोड़ी मकदार में दी जाए तो वो एक बीमारी को दूर कर देती है दवा,
اور وہی دوا اگر بڑھا دی جائے تو بین ہی وہی بیماری پیدا کر دیتی ہے جس کے لیے وہ دی گئی تھی. اس کی ایک مثال اوپیم ہے، ایپیکاک ہے. یہ بھی ایلوپیتھک نسخوں میں استعمال ہونے والی دوائیں ہیں. ٹنکچر اوپیم اور ٹنکچر ایپیکاک یہ متلی دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور یہ تحقیق شدہ بات ہے. سب ایلوپیتھ بھی جانتے ہیں کہ اگر زیادہ دے دی جائے تو سخت متلی پیدا کرتی ہیں دونوں چیزیں. تو سینیگا کا کیس بھی پرائمری اور سیکنڈری والا کیس ہے. پرائمری اثر اس کا لنگز کو بیماریوں سے اور ہر قسم کے بلغمی مزاج سے صاف کرنا ہے، اور سیکنڈری اثر وہ ساری بیماریاں پیدا کرنا جن کو وہ تھوڑی مقدار میں ٹھیک کرتی ہے. دمے میں بھی کارڈک اسما میں بھی بہت مفید ہے. کارڈک ایکسما میں سب سے اچھی دوا سپونجیا ہے، لیکن سینیگا بھی اگر اس کے ساتھ رکھی جائے تو ملا کے میں نے کبھی استعمال تو نہیں کی، لیکن میرا خیال ہے، اب مجھے خیال ہے کہ اگر ملا کے بھی دی جائے تو ہو سکتا ہے مفید ہو. بعض ایسی دوائیں ہیں جو جانوروں پر بھی ہومیوپیتھک میں تجربہ ہوتی رہتی ہیں، اور جانوروں اور انسانوں کی بیماریوں میں فرق یہ ہے کہ انسان کی بیماریوں میں ایک دوا ہر مرض، ایک ہی مرض سے تعلق رکھنے والی دوا ہر انسان میں کام نہیں کرتی، کیونکہ مرض اگرچہ وہی ہے لیکن انسانوں کے مزاج الگ الگ ہیں، اور کبھی کوئی دوا مانگتا ہے انسان، کبھی کوئی دوا، بعض ایک دوا مانگتے ہیں بعض دوسری. تو انسان کا اپنا مزاج بھی بدلتا رہتا ہے اور انسانوں کے مزاج بھی الگ الگ ہیں. لیکن جانوروں میں سیدھی سادی ایک ہی قسم کی سرشت پائی جاتی ہے، اس لیے جو دوا ایک دفعہ کیٹل پہ کام کرے گی وہ ہمیشہ ہی کرے گی الا ماشاء اللہ. جو دوا کسی مرغیوں پہ کام کرے گی وہ ہمیشہ ہی کرے گی سوائے اس کے کہ اللہ نہ چاہے، کیونکہ ایسے استثناء ضرور ملتے ہیں. لیکن اکثر معاملات میں یہ اصول درست ہے. سینیگا کیٹل کے نمونیا کے لیے چوٹی کی دوا ہے، اور وبا کی طرح نمونیا پھیلے ہوں کیٹل میں، اب سینیگا اس کو دیں گے تو خدا کے فضل سے ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. اور انسانوں میں اگر نیمونیا کے ساتھ پلوریسی کا حملہ بھی سخت ہو تو سینیگا اس کی اچھی کی دوا ہے. یہ پلورا کے ساتھ بہت تعلق رکھتی ہے، اور اس کا اگر نیمونیا بھی ہوگا تو پلورا ضرور انفلیم ہوتا ہے، کمبینیشن کے طور پر چلتا ہے. بعض دفعہ خالی پلوریسی ہوتی ہے. اور اس پہلو سے یہ رسٹاکس اور براؤنیا کا ایک کراس لگتا ہے. کچھ علامتیں رسٹاکس کی ہیں، کچھ براؤنیا کی ہیں. چیسٹ پینز، رومیٹک پینز، انفلیمیٹری پینز، یہ سب جو ہیں، اور دمہ کی علامتیں معمولی سے حرکت سے بھی اگر بہت بڑھ جائیں تو سینیگا اس کی دوا ہوگی. یہ اس کی خاص براؤنیا کی علامت ہے. چڑھائی پر چڑھنا اس کے لیے دوبر ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اگر دل کا اسما ہے، یعنی دل کی کمزوری کی وجہ سے، اس کے مسلز کی طاقت کی کمی کی وجہ سے دمہ ہو جاتا ہے، تو چڑھائی تو زہر ہے ایسے مریض کے لیے. تو یہ کوئی نئی علامت نہیں، اسی علامت کا ایک حصہ ہے اصل میں. بعض دفعہ جب بڑھ جائے تکلیف تو پھر معمول چند قدم اٹھانے سے بھی
दिल फड़कने लग जाता है और बाद दफा दमे का अटैक हो जाता है। और एंटीमोनियम टार्ट की तरह उस वक्त ये फेफड़े को साफ करने के काम आ जाती है जब फेफड़ों में मवाद बैठ चुका हो और कमजोरी की वजह से फिर इंसान उनको बाहर ना निकाल सकता हो। बाद में दिल की कमजोरी असरअंदाज हो रही होती है फेफड़े के ऊपर भी। इन दोनों के आपस में बड़े गहरे ताल्लुक हैं। तो सेनेगल में अमूमन दिल की कमजोरी की वजह से अगर फेफड़ों में उनको खांसी के जरिए मादे निकालने की ताकत ना हो या नफसियाती कमजोरी पैदा हो, यानी जिस जान पैदा ही ना हो, उसके लिए हिम्मत ही ना आए, तो उसमें सेनेगा मुफीद है। अगर सिर्फ फेफड़े का कसूर हो और दिल का ताल्लुक ना हो तो एंटीमोनियम क्रूड, एंटीमोनियम टार्ट इसके जो लंग्स की तकलीफें हैं जिनमें वो खांसी के जरिए अपने बलगमों वगैरह को बाहर निकाल के फेंक नहीं सकता, इसमें वही कमजोरी है जो मालूम होता है दिल के साथ ताल्लुक है। थोड़ी देर तक बाहर लाता है, फिर वो गिर जाता है अंदर, फिर बाहर लाता है, बाद दफा वो निकल जाएगा लेकिन इतना बाहर नहीं आता कि उसको बाहर फेंक सके। तो ये इलामत कॉस्टिकम में भी है। कॉस्टिकम में इसलिए कि वो फालजी इलामतें उसमें पाई जाती हैं। और किस में है? ब्रायनियम में भी है कि नहीं है? क्यों जी? स्पॉन्जिया में है, वही दिल वाली बात। तो स्पॉन्जिया और सेनिशो ऑरेंस और कॉस्टिकम इस पहलू से मिलते हैं आपस में। बाद लोगों को आंख का फालिज होता है और ऊपर का लेड गिर जाता है नीचे, उसमें और भी दवाएं हैं मगर ये भी एक अच्छी दवा है। एगेरिकस भी उसमें अच्छी है, प्लम्बम भी आंख के ऊपर के फालिज के लिए मुफीद है। आयराइटिस में भी मुफीद है ये दवा। कॉर्निया के ऊपर दाग या छोटे छोटे जर्रे दिखाई दें, ये ब्लेफराइटिस कोई बीमारी है, मुझे नहीं समझ आई क्या चीज है जो ब्लेफराइटिस। जो सोजिश आंखों की जो ऊपर जो लिड्स की इंफ्लेमेशन ऑफ द लिड्स। जी, ये लिड है, इसको ये जो लिड्स को ऊपर का ये छप्पर, आंख का छप्पर, उसकी इन्फ्लेमेशन आइटिस जहाँ भी है वो तो इन्फ्लेमेशन है, लेकिन ब्लेफरा मसला ब्लेफर के मसला इटिस का नहीं है। इसी को कहते हैं जी ब्लेफर। जी, ब्लेफराइटिस, राइट, ब्लेफा कहते हैं इसको, जी, आंख के छप्पर को। जी, ठीक है। जो लेरिंग्स में खुजली होती है, जिसे खांसी बहुत उठती है, ये बहुत दवाओं में मिलती है। ये मैं कई दफाएं पहले भी आपको बता चुका हूँ। फास्फोरस में भी बहुत नुमाया है, इसमें भी बहुत नुमाया है। अगर एक से फायदा ना हो तो दूसरी से। रस्टॉक्स में भी बाज़ दफा रस्टॉक्स से फौरन फायदा पहुंचता है, लेकिन अगर एक दवा फायदा दे और फिर रुक जाए तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, ये सवाल है। कोई बता सकता है क्या करना चाहिए? ताकत बढ़ा के दे। हाँ ठीक है। और अगर फिर भी काम ना करे तो और ताकत बढ़ा दी जाए? नहीं उससे पूछो। नहीं, अगर काम कर रही हो तो ताकत बढ़ाएं। अगर उसने काम किया तो ठीक है, अगर ना करे तो फिर ना छोटी काम आएगी ना बड़ी काम आएगी। इसका मतलब है कि वो दवा आर्जी फायदे की थी, मुस्तकिल इस बीमारी से उसका ताल्लुक नहीं है। फिर मुतबादिल दवा ढूंढनी चाहिए। बस खारिश में भी बाज़ दफ़ा एक दवा फौरन फायदा दे देती है, दूसरी दफ़ा नहीं देती, फिर और ढूंढनी पड़ती है।
मुझे जब ये खांसी पीछे हुई थी तो वो टिकलिश खांसी शुरू हो जाती थी बोलने के नतीजे में। तो मुझे याद है एक दफ़ा फास्फोरस ने फौरन फ़ायदा दिया था, रस्टॉक्स ने भी दिया, और इसने क्या हेपरसल्फ ने बाद में दिया था, उसने लंबा अरसा दिया था फ़ायदा। लेकिन ये जो है अभी मैंने बताई थी दूसरी दवा, एपिकॉक नहीं, वो जो असाब की दवा है, रस्टॉक्स तो बता चुका हूँ मैं पहले ही, हैं? नहीं अभी नाम लिखा है, छोड़ दें उसको। कॉस्टिकम नहीं, वो एक और दवा है, उससे भी फायदा हुआ था। लेकिन मुस्तकिल फायदे में हेपरसल्फ मुझे 30 में कुछ अर्सा खानी पड़ी थी। वो ज्यादा गहरी जाकर अंदर इन्फेक्शन की वजह है उसको ठीक करती है, महज एक सुपरफिशियल चीज नहीं है, बल्कि अंदर दबी हुई कोई इन्फेक्शन है जो बार बार तंग करती है। क्या किसने? एल्यूमिना भी खाई थी, मुझे याद, उससे भी फायदा हुआ था, लेकिन फिर हट गया था। आपके सामने कई दफा मैं निकाल के खाता रहा हूँ, दर्स में भी, इस दौरान भी, तो वक्ती तौर पर फायदा हो जाता था, फिर दोबारा शुरू हो जाती थी। तो उसमें फिर जो मुस्तकिल फायदा गहरा हुआ है वो हेपरसल्फ से हुआ था। हेपरसल्फ में भी ये बात पाई जाती है। नहीं, इस दवा में जो ये टिकलिश चीज पाई जाती है, इसके साथ बर्निंग का एहसास होता है जो बाकी दवाओं में नहीं है। बाज़ों में है लेकिन इसमें लाजिम है। अगर सेनेशो की जरूरत पड़ेगी, सेनेगा की, सेनेगा, हाँ सेनेगा की जरूरत पड़ेगी तो ये जरूरी है। सेनेशो तो खत्म हो चुकी है, पहले बढ़ चुका हूँ, लेकिन दवा में वो थी, इसलिए एक दो पहले भी सेनेशो कह चुका हूँ, उसको रेक्टिफाई कर लें। अब सेनेगा है जो लंग्स की बीमारियों में एलोपैथिक दिया करते थे, और इसकी सेकेंडरीज जो हैं उनमें होम्योपैथिक दवा काम आती है। और कैटल की बीमारियों में, खासतौर पे उनके निमोनिया में बहुत अच्छी है। इंसानों के निमोनिया जमा प्लूरिसी में ये बहुत अच्छी है। इसकी बाज़ इलामतें रस्टॉक से मिलती हैं, बाज़ किसे, ब्राउनिया से, और ये दो इलामतें मिलकर बाज़ दफ़ा मरीज की पहचान मुश्किल बना देती हैं। हरकत से लंग्स को और प्लूरिसी को तकलीफ होती है, लेकिन ये मरीज करवटें बदलता है रस्टॉक्स की तरह, कुछ देर के बाद इधर हो जाएगा, कुछ देर के बाद उधर हो जाएगा। तो ये बेचैनी जो है वो रस्टॉक्स दिखाई दे रही है, लेकिन वाक़तन हरकत से इसको तकलीफ बढ़ती है। और भी बातों में रस्टॉक्स से मुशाबे है। तो ये सेनेगा की है, मगर मैं किसी पहली इलामत में गलती से सेनेशो कह चुका हूँ तो उसको कैंसिल कर दें, ठीक है? इसमें ड्राइनेस मुंह की और गले की अमूमन मिलती है। और एक खास बात और जो सेनेगा की पहचान में मददगार है वो कॉपर टेस्ट है। सेल, जो बैटरी के सेल हैं, उनके ऊपर छोटा सा कॉपर लगा होता है। कई दफा हम जुबान से लगाते थे तो एक हल्की सी उसमें तेजी सी खटास सी है, जो खटास भी नहीं है और लगती भी है कुछ। याद है आपको? कभी लगाया आपने भी? हैं? पंजेंट सी है जी। हाँ, पंजेंट इतनी नहीं है, मगर एक शार्प सी, जिससे कुछ शार्पनेस है उसमें कुछ, तो वो कॉपर टेस्ट कहलाता है। इसके अंदर कॉपर टेस्ट पाया जाता है, यानी गले मुंह में अगर वैसा एहसास हो कहीं कभी कभी जैसे कॉपर है अंदर, उसके लिए बहुत मुफीद है। अभी मुझे खत आया था पाकिस्तान से कि आपने पूछा था कॉपर किस तरह बनता है, तो अलॉय है। आपने चली थी कि
اس میں زنک ملاتے ہیں یا اور کوئی چیز ہے جس لکھا ہے تانبا کہتے ہیں اس میں؟ ہاں تانبا نہیں کاپر نہیں میں دوسرا کہہ رہا تھا پیتل ہاں پیتل میں آپ نے کہا تھا پیتل پیتل ہاں پیتل میں براس کاپر پلس زنک زنک ہے جی جی اچھا اور زنک کا ہی خط ہے خط میں یہ لکھا ہے کہ زنک ملاتے ہیں جی جی اور آگے تھا ایک اور برونز میں بھی کاپر ہے اور ٹن ہے برونز جی اس میں کاپر اور ٹن ہے اچھا اور ٹن وہی تین چیزیں ہوگی نا الگ الگ جی ایک تو کاپر خود ہے وہ تو اکیلا ہے دھات ہے اس میں اور کوئی چیز شامل نہیں ہوتی اور ایک اس سے تیار کرتے ہیں پیتل جی جی براس جو عام طور پر ہندوؤں کے برتنوں میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے ان کی جو بھاجی بنتی ہے اکثر پیتل کے برتنوں میں بناتے ہیں جی اس کو براس کہتے ہیں جی جی ٹھیک ہے نا جی جی اس میں کاپر اور زنک ہے اس میں کاپر اور زنک ہے ایک کانسی ہے کانسی ٹھیک ہے برونز جسے کہتے ہیں اس میں کاپر اور ٹن ہے اچھا مجھے ٹین یاد تھا اس لیے میں نے ٹین کہا تھا مگر جو خط آیا تھا اس میں ٹین کی بجائے زنک لکھا ہوا تھا تو دراصل وہ کانسی کے لیے ٹین ہے جی اور پیتل کے لیے زنک ہے پیتل کے لیے زنک پیتل کے لیے زنک جی ٹھیک ہے اس میں لنگس کے اندر جو بیماریاں ہیں ان میں ٹیوبرکلوسس بھی شامل ہے بہت تھک اور چمٹنے والی بلغم بہت کثرت سے لنگز میں پیدا ہوتی ہے اور یہ خاص طور پر جب بگڑ جائے سیل جو چھاتی کی سیل ہے تو اس قسم کی بلغم بڑی کثرت سے ملتی ہے ہمارے ربا میں ایک ہوا کرتے تھے بزرگ وہ اپنے ساتھ اپنا اسپیٹل لیے پھرتے تھے ہر وقت اور باتیں کرتے کرتے اتنی بلغم بنتی تھی کہ لگتا تھا کارخانہ لگا ہوا ہے اور بیچارہ نے بڑے صبر کے ساتھ گزارا کیا ان کو میں بھی علاج کرتا ہوں کو کافی پیلیٹیو رہا لیکن ٹھیک نہیں ہو سکے تھے وہ کیونکہ وہ 30-40 سال سے تھی اور اسی طرح وہ گزارا کرتے تھے تو یہ میں نے دیکھا ہوا نظارہ جو بلغم اس طرح کے پھینکتے ہیں اس میں یہ دوا بہت پیلیٹیو ہے کیوریٹیو نہیں ہے ایسی بیماری میں کیور دینے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے لنگز کی سیل جب آگے بڑھ چکی ہو تو اس وقت اگر کیور ہے تو سلفر اور سلیشیا اور فاسفورس میں ہے لیکن اگر آگے بڑھ چکی ہو تو بہت احتیاط سے چھوٹی طاقت میں کبھی کبھی دے کر اس کا اثر رفتہ رفتہ بڑھائیں اور جان پیدا کریں اس میں جب وہ جان پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے اونچی طاقت بھی دی جا سکتی ہے اور بیسیلینم بھی مریض میں جان پیدا کرنے کے لیے مفید ہے بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے فیملی میں کسی وقت ٹیوبرکلر اثر ہے یا ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں لاہور کے مثلا شہر میں رہنے والے سیلو رنگ اور جان نہیں آتی چہرے پر اور خاص طور پر بچیوں میں یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے پھر ماں باپ کے لیے تو ان کو اگر اس کا ٹیوبرکلینم اور یا بیسیلینم 200 میں 2-3 خوراکیں دے کر 1000 کبھی کبھی دینی شروع کر دیں اور 1-2 سال کے اندر اس کو پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیں تو بعض بچیوں میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوتی ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ حیرت انگیز ان کے نقشہ بدل جاتا ہے ویسے نقوش بنیادی طور پر ٹھیک ہی تھے مگر جب وہ سلی مرض کے اثر جلد پر ہوں تو کیسے بھی نقوش ہوں ان میں بالکل جان نہیں رہتی اور طبیعت میں تھوڑی سی اس سے کراہت نہیں تو ہلکا سا خوف پیدا ہوتا ہے لیکن اس دوا سے اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو لنگز میں احتیاطیں چاہیے ان میں کیوریٹیو دواؤں سے پہلے کچھ پیلیٹیو دوائیں دی جاتی ہیں جو ان کے اندر جان پیدا کر دیں سینیگا میں یہ خوبی ہے کہ یہ چونکہ سیل کی کیوریٹیو نہیں ہے مددگار ہے اس لیے
सिल के आखिरी दर्जे पर भी जबकि कोई दवा कारगर ना हो ये फायदा जरूर पहुंचाती है और आसानी पैदा कर देती है मरीज के लिए। तो इसलिए इसकी बहुत अहमियत है सेनेगा की कि ये मददगार है और इसका बद रद्द अमल कोई नहीं है। अब बलगमी मिजाज की एक और दवा भी है सैंग्विनेरिया। ये दरअसल खूनी मिजाज है जिसके साथ बलगमी बातें भी पाई जाती हैं, लेकिन ज्यादातर सैंग्विन उसको कहते हैं जिसके अंदर खून ज्यादा हो और खून दिखाई भी दे, चेहरा तमतमाया हुआ खून से, ऐसे शख्स को सैंग्विन कहते हैं। हर वो चीज जिसमें खून ज्यादा हो उसको सैंग्विन कहते हैं। तो इस दवा का नाम ही सैंग्विनेरिया है। अब पता नहीं क्यों रखा गया है, शायद उसकी हर देख के, उसकी सिफात देख कर या खुद सोच रंग किया। आपने देखा कभी सैंग्विनेरिया का पौधा? पीरियोडिक हेडेक में इसका इस्तेमाल बहुत है। पीछे से सरदर्द शुरू होती है और आमतौर पर दाईं कनपट्टी पर या दाईं आंख पर बैठती है। मसली इसके साथ आती है, बड़ी सख्त तकलीफ बढ़ जाती है। उल्टियां आने के बाद फिर आराम आता है। और गर्म दवा है मिजाज की, इसलिए पल्स्टिला से इसकी मिलती हैं हरकतें। पाँव भी गर्म, हाथ की हथेलियां भी गर्म, और बिस्तर से पाँव बाहर निकाल देगा मरीज, ठीक है। लेकिन वो खासतौर पर औरतों में मिलती है पल्स्टिला की अलामतें। ये मर्द और सब में बराबर है। लंबा असर की दवा नहीं है, बस थोड़ा सा असर वक्ती तौर पर ये बीमारियों को फायदा दे दिया, लेकिन क्रॉनिक मरीजों के लिए काम नहीं आती। और अब वक्त की बात हो रही है तो सिर्फ आधा मिनट रह गया है, इसलिए अब मेरा ख्याल है इजाजत लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल। ठीक है, आज हमने काफी तेज काम किया है। 3 दवाएं पढ़ा दी हैं आपको आज अल्लाह के फजल से, बर्बरिस और सेनिशो ऑरेंज और सेनेगा। और सेनिशो का बर्बरिस से क्या ताल्लुक था? पथरी और गुर्दा, इसलिए इनको अभी दोबारा दुहाई कर लें ज़हनी तौर पर, याद रह जाए। ताकि सेनिशो और बर्बरिस का एक मैंने ग्रुप बनाया था, और सेनेगा इसके बाद लंग्स की दवा है। और इसी ताल्लुक में सैंग्विनेरिया भी मैंने शुरू की है। इसमें भी गालबन अभी आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लंग्स की अलामतें पाई जाती हैं। लो जी, अच्छा जी, और कोई बात पूछनी हो, कहनी हो तो बता दें। मैंने कहा आप किस हद तक आगे बढ़ी हैं अपने काम में?